what we are covering today is the following, which is chapter number 10. And already what we were covering in the class today, Alina, it's exactly the same. Network services. The name is different. And I will link the two and you will find that it is exactly the same. What I mean by service? When an application starts, you know, and it provide you some service, which means it fulfills some of your requests, we call it, and it is related to the network, we call it network service. Now the question is where the application reside. We understand that these resides on the application layer, because we know that we are covering the 5 layers of the TCP IP suite, which are physical layer, then the data link layer, and data link layer further is divided into LLC and MAC, then the network layer, then the transport layer, and finally the network services lies in the application layer. So we know that definitely in this course we will be talking about the well-known services, and these are again the following. Number one, you already know DHCP. The number one is DHCP. We already understand that DHCP is required to get the IP address, the subnet mask, the lease time, the default gateway, and the DNS. All of these information is obtained from a server which we call as DHCP server. You further know that an IP address can be obtained by two methods. One is static and the other one is dynamic. So in IP version 4, the way which we get the IP address, it is stateful, which means when an IP address is assigned to me, if I have the power to enter into my router, I can see there that which IP address has been assigned to which MAC address. So it means the status is available in the server, so we call it stateful. Although there is no stateless method in IP version 4, that is the reason we don't use the word stateful or stateless, because there is only one way and we simply call it DHCP. However, in the in the IP version 6, we have two ways, either stateful or stateless. Mostly it is stateless. Stateless means that it only provides you the network part, and the that the host part or interface part, I should call it, the interface part is, there are two methods. Either it should use the random way and it can choose 48 bits, 64 bits randomly. It should choose the 64 bits randomly. Second method is, however, in this way, there is a possibility that the two nodes network may get the same IP address, because network part is same. If by some way the 64 bits randomly generated may be same. I am using the word maybe, although the probability is very. The second method is, that you use your MAC address, which are 48 bits unique, and you add to these 48 bits the remaining bits, and in this way you get a unique IP address. So this is called stateless, because the centralized router does not have any information. However, there can be stateful DHCP, which is very much similar to the IP version 4 DHCP. The next one is the DNS, domain name system. So you again understand that people like you and me can understand the English. An IP address, whether it is IP version 4 or IP version 6,
It is a 32-bit or 128-bit address, and there are millions of addresses, billions of addresses, not millions, billions of addresses. Sorry, it is, we are not capable to remember all of them. I hope you agree with me. That is the reason what is required, a machine is required, a service is required, a network service is required, where what we can remember easily is the English names, like cisco.com, like siemens.com, like nokia.com, like google.com, yahoo.com, facebook.com, youtube.com, blah blah. But we cannot remember the IP addresses of these devices. So ladies and gentlemen, wherever you feel any difficulty, please let me know. I will make it further, I will explain it further, no issue. So the DNS is a machine where you provide him the IP, your URL, and it provides you the IP address. Again, it should be very clear that it is not must that a single machine knows the IP addresses of, or this mapping of the whole world. So how it is done? If you remember, I have explained previously that DNS is a hierarchical. DNS is a hierarchical distributed method of machines service, DNS service. What mean by distributed, or what mean by hierarchical? Which means there is a top level which we call as the root. If you remember, root, there are approximately 400 root nodes around the globe, which only knows, which doesn't know cisco.com, yahoo.com. No. This is not the job of the root. Root only knows the top level domains. Please, जहां समझ ना आए, अलीना एंड दिलावेज मुझे इंटरप्ट करें. जी सर, आ रही है समझ. Good. Okay. So what are the top level domains? Like .com, not cisco.com, just .com, .org, .mil, .gov, .edu, for example, .pk, .jp, blah blah. इससे आपको पता चल गया जितने ममालिक हैं, countries. Okay, so these are the called as the TLDs, top level domains. Then is the second level domain, where all the .com information is there. Only .com. The TLD, sorry, the second level domain of .com will have information of only .coms, like cisco.com, facebook.com, blah blah. The org will have only information of the org. Mil will have the mil only. Gov will have the gov only. Are you getting my point, Alina? Or I may show you the diagram and explain that. Yes, sir. It means clear. Do you want to say this? It means no need for the diagram. Okay, nice. So the top is the root. The second is the top level domain. Then is the second level domain. And then below this top level domain, we have the authoritative servers, which are related to a certain company, like Cisco, like Siemens, like Nokia, and so on. So when your machine, for example, I request cisco.com. If my local DNS has this information, it will return me the IP address of that server. Nice. But if it doesn't have, it will ask the root, and root knows that I am asking about .com, cisco.com. So it will not look at Cisco, it will look only at the .com, and it will return me the
address of me means my DNS, the IP address of .com, then my DNS will query the .com. Then Mr. .com, which is the top level domain, tell me cisco.com. So it will tell the address of the authoritative server which is related to the company's DNS. It only knows all the IP addresses related to the company, cisco.com. It doesn't know about the Siemens. It doesn't know about any other. And when I reach to the authoritative server, it will return me, for example, in the cisco.com, there is a training.cisco.com. There is a equipment services dot which are called as the subdomains of the organization. इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान आपके साथ एक लैब करूंगा तो हम किसी भी बड़े नेटवर्क के जितने भी सब डोमेन्स हैं उन सबको ढूंढेंगे, निकालेंगे, मालूम करेंगे. क्यों दिलावेद आज एसएम क्यों नहीं है? सर उनके डिपार्टमेंट की आज पार्टी है इस वजह से. अच्छा ठीक, तो आपका डिपार्टमेंट पार्टी नहीं करता? सर करता है लेकिन मैंने कभी भी अटेंड नहीं की. ओके नाइस. तो मेरी बात समझ आ रही है? तो यूं आप उस अथॉरिटेटिव सर्वर आपको उस डोमेन का या सब डोमेन का या उस सर्वर का जो आपको रिक्वायर्ड है उसका एड्रेस दे देगा. आपका डीएनएस अपने पास कैशे में भी रख लेगा और आपको भी दे देगा. तो यूं डीएनएस एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी है जो कि आपको किसी भी एग्जिस्टिंग यूआरएल का आईपी द्वारा दे देता है. The next is NAT, Network Address Translation. You again know that network address translation, as the name represents, around 1995 this concept was introduced, which means around 25 years back. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमें आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस की शॉर्टनेस नजर आई कि ये और नहीं हो सकते, चल सकते, तो हमने कहा कि एक प्राइवेट आईपी रख लेते हैं, एक पब्लिक रख लेते हैं. प्राइवेट आईपीज वो हैं जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से खरीदे. जबकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस आपको पता है कि वो एड्रेसेस होते हैं जो कि आपको राउटेबल हैं, यानी कि वो आपको दुनिया से बात करवा सकते हैं. प्राइवेट एड्रेसेस में ये क्वालिटी हरगिज नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपना आईपी एड्रेस दिखाना चाहूं, हमेशा मैं आपको दिखाता रहता हूं, और यहां पे मैं लिख दूं आईपी कॉन्फिग, अगर इस कमांड प्रॉम्प्ट, या दैट्स नॉट बैड, config/all, and you will see that my IP address is 192.168.10.8. Now this is a private IP address. With this IP address, I cannot reach to Google Meet, to Gmail, to YouTube, to Facebook, and so on. I cannot reach there. So what is the solution? We keep in between the public IPs, which mean the network, the internet, and our private network, a translator. And again, translator is a service, and that service is used to convert the private IP into a public IP, and then our request is sent to the internet. And when the response to our request come back, what happens? That again this IP is changed, and based upon the private IP address we get the response. अभी यही हो रहा है, मेरे एंड पे भी प्राइवेट है, आपके एंड पे भी प्राइवेट है. अलीना चेक कर ले अपना आईपी, दिलावेज चेक कर ले अपना आईपी, you will find that your IPs are private. But an IP address has been assigned to your router. Maybe it may also be a private IP address.
दैट मे आल्सो बी अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। जब मैं आपके सामने वाईफाई राउटर, जिसको आप एक्सेस रूटर भी कहते हैं, जब मैं उसको कॉन्फ़िगर करूं, जो करूंगा, तो देखिएगा कि मैं उसको एक आईपी एड्रेस वैन में दूंगा और कुछ आईपी एड्रेस की एक रेंज उसको दूंगा कि आप ये आईपी एड्रेसेस अपने क्लाइंट्स को दें। जैसे अभी मुझे मिला हुआ 10.8, हो सकता है कि इस राउटर का आईपी एड्रेस जो है, हो सकता है कि आपको नजर आ रहा है कि इस राउटर का आईपी एड्रेस है 10.1, 192.168.10.1। इसके बाद अगर मैं करूं ट्रेस आरटी, फॉर एग्जांपल किसी को भी करता हूं www.cisco.com, तो ये जो दूसरा आईपी एड्रेस आपको नजर आएगा, जबकि सिस्को का एड्रेस जो है वो देखें 10.1, जो कि इसका आईपी, ये आईपी एड्रेस जो है 182.176, इसके बाद ये आईपी एड्रेस है। तो इस राउटर को एक एड्रेस दिया गया हुआ है 182.176.0.102। तो ये वहां पे ये एड्रेस यहां पे ट्रांसलेट करता है। अल्दो 182 जो है आप देख रहे हैं कि पब्लिक है, उसके बाद 10 डॉट अगेन प्राइवेट है, 182 फिर प्राइवेट है, पब्लिक है, फिर 10 10 के दो हैं। तो कहने का मकसद ये है, जितने भी आपको 192.168 की सीरीज में नजर आते हैं, जितने आपको 10.0.0.0 में नजर आते हैं, जितने आपको थर्ड सीरीज इज 10.192 110 192, एक और सीरीज भी है 172 probably, Yes, sir, private 172. 172 172.160 एग्जैक्टली देख लेते हैं, नो इशू। तो ये तीन रेंजेस जो हैं वो हमें एक किसके जरिए बताई गई हैं, आपको पता है, हमें बताई गई हैं थ्रू ए आरएफसी, कि ये आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रेंज है, प्राइवेट एड्रेस रेंज। जी बिल्कुल, देखिए 10.0.0.0 जैसे मैंने बताया, 172.16.0.0 एंड 192.168.0.0 along with the subnet mask आपको नजर आ रहा है। So these ranges has been defined as private, but within the LAN it should be unique, but in the globally it is never unique। यही मेरा आईपी एड्रेस लाखों लोगों का होगा, इस तरह आपका भी। So what is desired then in a public IP address normally is used, a group of maybe a range of group IP addresses is given to the NAT, which translates and you becomes routable, you can reach to the world। बात समझ आ रही है? जी सर। फिर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अब आपको क्वेश्चन ये होगा, जैसे यूईटी है, तो यूईटी में अल्दो एग्जाम्पशन तो ये है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क के अंदर ही बात करेंगे। मिसाल तो पे जो ट्रेजरर है वो रजिस्ट्रार से कर रहा होगा, रजिस्ट्रार जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार से कर रहा होगा, डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कर रहा होगा। यानी इस तरह का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे हमारे कम अज कम यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। हमने किसी को इंटरनल भी देना होता है तो हम उसकी चीज को बाहर भेजते हैं। मिसाल तो हम उसको ईमेल कर देते हैं, और ईमेल तो वो चीज कहाँ चली जाएगी, जीमेल पे चली जाती है, और फिर वो वहीं से उठा के दोबारा अपने अपने पास ले आता है। हम कहते हैं ना ईमेल कर दिए तुम्हें, लिख लो। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग बाहर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे लाजमी तौर पे यूनिवर्सिटी के पास तो ज्यादा से ज्यादा लेट इट बी 10 आईपी एड्रेसेस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 आईपी एड्रेसेस होंगे। तो इसका मतलब है कि एक वक्त में 10 लोग बाहर जा सकते हैं, बस से ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसके लिए फिर एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसका पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, कि हम
एक ही आईपी एड्रेस आपको पता है उसके पीछे 65,535 पोर्ट्स पॉसिबल हैं, तो हम पोर्ट और आईपी को मिलाते हैं, लाजमी तौर पे ये हर एक के लिए अलग होगा। तो यूं एक ही आईपी एड्रेस से तकरीबन 65,000 कनेक्शंस हम बना सकते हैं। सो गुड पॉइंट तो है, लेकिन बैड पॉइंट ये है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, डिले, और दूसरा जो डिसएडवांटेज है दोनों नेट और पैट का कि सिक्योरिटी का मसला है। मिसाल के तौर पे इस आईपी से अगर मैं मिसाल तौर पे यूटी में बैठ के काम करता हूं, वहां भी नेट है, तो क्या होगा कि डेफिनेटली जब मेरा पैकेट किसी के ऊपर मैं अटैक करता हूं, कोई गलत काम करता हूं, वो नहीं मालूम कर सकता, वो समझेगा कि यूटी ने अटैक किया है, यूटी कहेगा मैंने कहाँ किया है, मेरे पास ये ऐसी सलाहियत मौजूद ही नहीं है, मैं तो खुद एक नेट हूं। तो फिर को अंदर पता लगाना नामुमकिन है, क्योंकि एक आईपी को अराउंड 65,000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वक्त किसने इस्तेमाल किया कोई रिकॉर्ड रखना इसका नामुमकिन है। तो ये है आपकी नेट सर्विस। ओके जी, द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस is the file transfer, FTP, file transfer protocol. So this protocol FTP, whose job is whenever you upload something, जैसे आप आजकल तो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जब भी किसी फाइल को आपने अपने पीसी के साथ साथ आप कोशिश करते हैं कि क्लाउड पे रख दें, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि बच्चे 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिनमें अगर आप किसी एक एरिया में भी स्पेशलिटी हासिल कर लें, तो जैसे आपने खुद आज अलीना ने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम का एक स्टूडेंट बहुत हाई, और वो कोई इतना पुराना भी नहीं है, चंद साल पहले ही ग्रेजुएटेड एंड नाउ ही इज एंजॉयिंग ए गुड लाइफ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी एरिया में, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लाउड सिक्योरिटी हो, चाहे वो आईओटी सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, क्लाउड के ऊपर तमाम काम हो, चाहे वो ऑटोमेशन हो, दे आर समथिंग, चाहे वो डेटा साइंस हो, ये कुछ ऐसी एरियाज हैं जिनमें आपकी स्पेशलिटी अगर बन जाती है तो प्रॉब्ली नोबडी कैन स्टॉप यू, सक्सेस इज ऑलवेज देयर। तो कहने का मेरा मकसद ये था इस सारी की चीज के पीछे कि आप आज अपने हार्ड ड्राइव, आज से चंद साल पहले हम हर चीज को अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर रखना पसंद करते थे, इवन हम बैकअप भी लेते थे तो किस में लेते थे, अगर बहुत पुराने थे तो मैग्नेटिक टेप्स होती थी, उन मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर हम अपना डेटा सेव करते थे। फिर जमाना इंप्रूव हुआ तो हमने डीवीडीज के ऊपर और सीडीज के ऊपर अपना डेटा सेव करना शुरू कर दिया। फिर हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल हो गई, हमने उसके ऊपर डेटा सेव करना है, लेकिन करते अपने पास थे। लेकिन अब के जमाना क्या है कि हम अपने इवन अपनी मोबाइल में जो हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि क्लाउड के ऊपर सेव कर दें। क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। जब अपलोड करते हैं तो कई दफा दिन में उनको डाउनलोड भी करते हैं। तो दिस अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इज डन थ्रू दिस फाइल ट्रांसफर एंड शेयरिंग सर्विस। क्योंकि जब आपने उसको अपलोड करके फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड पे रख दिया और किसी को लिंक पास ऑन कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक पास कर देता हूं, और उस फॉर्म को मैं अपने कंप्यूटर पे नहीं रखा हुआ मैं उस फॉर्म को गूगल क्लाउड के ऊपर रख देता हूं कि कोई भी उस फॉर्म को उनके साथ वो शेयर हो गया। तो दिस इज ए फाइल ट्रांसफर एंड शेयरिंग सर्विस, जो कि अगर ऑर्डिनरी एफटीपी से किया जाए तो it must be known that it is using TCP and it is using the port 20 and 21, and which is well known ports, and then, ladies and gentlemen, this but this is plain text. By plain it means no encryption, and by encryption we mean delaways. What do you mean by encryption? सर जिसको हम रीड नहीं कर सकते, जो आम टेक्स्ट में नहीं होता, जिस टेक्स्ट को हम तब्दील कर देते हैं,
यानी वो नहीं रहता जो असल होता है। मिसाल के तौर पे अगर दिलावेज खान जदून है, मैं ये लिखता हूं टेक्स्ट, और फिर इस टेक्स्ट को मैं किसी भी ऐसे एल्गोरिथम को दे देता हूं जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, इस अमल को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो किसी भी मिसाल के तौर पे एईएस को दे देता हूं, डेस्क को दे देता हूं, 3 डेस्क को दे देता हूं, और इस तरह के और बहुत से एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम पूरा चैप्टर इस पे पढ़ेंगे। तो इन वो क्या हो जाएगा, यही दिलावेज खान जदून विल बिकम समथिंग डिफरेंट। और अगर फिर भी याद ना हो तो आपको मैं बताता चलूं कि जब हमने स्विच को और राउटर को, सारे स्विचेस को कॉन्फ़िगर किया था, तो हम पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट कर देते थे। तो जो भी आपका पासवर्ड होता था, अगर आप अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर दिखाई देता, जी जी सर, याद है मुझे। लीना शाबाश। तो कहने का मतलब, अगर आजकल के जमाने में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एफटीपी वी यूजेस एसएफटीपी, और ये दोनों एफटीपी और एसएफटीपी जो है टीसीपी को इस्तेमाल करते हैं, डीएचसीपी यूडीपी को इस्तेमाल करते हैं। बताया यूडीपी हम दो केसेस में प्रेफर करते हैं। अभी अभी हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है, टीसीपी हम सॉरी यूडीपी हम जब हमने शॉर्ट डेटा भेजना हो, थोड़ा डेटा भेजना हो, तो वी प्रेफर यूडीपी। क्यों? कि आपका डेटा छोटा है और आप उसके साथ 20 टीसीपी के ऐड कर दें, विच इज द मिनिमम, इससे ज्यादा हो सकते हैं, आपको पता है ऑप्शनल बाइट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 तो है ही है। आपके साथ में कैप्चर एज कंपेयर टू द यूडीपी सिर्फ 8 बाइट्स का, यानी आधा से कम। तो अगर आपका डेटा ही कम है तो इट इज नाइस, आप उसके साथ ओवरलोड भी कम लगाएं, ओवरहेड भी कम लगाएं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, अगर आपको डिले बर्दाश्त नहीं है, अगर आपको लॉस की कोई परवाह नहीं है, आपको रिलायबिलिटी की कोई परवाह नहीं है, आपको फ्लो कंट्रोल की कोई परवाह नहीं है, आपको ऑर्डर डिलीवरी की परवाह नहीं है, देन गो फॉर यूडीपी। इसलिए तमाम आपके, अगर आपको याद हो, जब हमने अपनी इस ट्रैफिक को जो गूगल मीट के और मेरे और आपके दरमियान चल रही है, हमने इस ट्रैफिक को भी कैप्चर किया था। और अलीना, ये इसके पीछे कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल था? चलें, अगर ये याद नहीं है तो इतना बता दें कि कौन सा टूल हमने इस्तेमाल किया था कैप्चर, ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए। सर अलीना से पूछ रहे हैं, मुझसे मैं बताऊं? जी जी, अलीना अलीना भी आजकल पढ़ रही है और जवाब देती है। वायर शॉक देखिए, तो उसने बताया गया कि इसके लिए जो ट्रैफिक है, यानी आप एक दूसरे को भी जानते हैं तो सीनियर जूनियर्स, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट से हैं नहीं सर, कि कभी नहीं? एक मुलाकात ही दूसरे नहीं हुई सीनियर हमारी। जूनियर एक दूसरे के साथ फासला रखते हैं। कभी मुलाकात नहीं नहीं सर, हुई है? नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, उसने भी लिख दिया नो सर। अच्छा, दैट अमेजिंग। वरना एक ही, क्योंकि फीमेल तो कम होती हैं, और एक आप मेरे ख्याल से दिलवेज 7th सेमेस्टर में है और अलीना 5th में है। जी सर, सर जो तो इतना हॉस्टल में होते ज्यादा हैं उनसे तो हाइटली मुलाकात होती है, डिफरेंस भी लेकिन नहीं ये है, डे स्कॉलर है तो इनसे हमारी लेकिन मुलाकात नहीं चले, होती। एक दूसरे से कभी मिलिएगा जरूर। हो सकता है बाय फेस ना, फेस से आप जानते होंगे एक दूसरे से, लेकिन इस तरह कभी ये नहीं पता होगा कि ये अलीना है, ये कौन है। ये सर क्लासेस डिफरेंट टाइम पे होती है ना, और फिर ये हॉस्टल की नहीं है तो इस वजह से हम जानते नहीं है एक दूसरे को। ओके, बिल्कुल। एक वजह ये भी है कि अलीना जो है वो डे स्कॉलर है, और दिलावेज जो है वो हॉस्टल में है। तो इसलिए आपका, अगर आप दोनों ही हॉस्टल की होती तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को कम से कम एक दूसरे को देखा होता। और फिर आप इलाके के भी डिफरेंस हैं।
बाजू का एक एरिया के लोग भी हों तो एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं। एनी हाउ, तो हम बात ये कर रहे थे कि इस फाइल शेयरिंग के लिए हम नॉर्मल केस में अगर प्लेन टेक्स्ट में भेजना हो, अपलोड डाउनलोड करना हो, तो वी यूज एफटीपी, बट मोस्टली वी यूज द एसएफटीपी विच इज द सिक्योर वर्जन। फर्क इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भेजने से पहले इंक्रिप्ट कर लो, बस यही फर्क है। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी टीचिंग यू दी नेक्स्ट सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, जो कि, और ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं आप देखेंगे कि ये हम अटैक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इस पे आता हूं कुछ देर में, कि अगर आप डीएचसीपी से आपने क्या मांग रहे हैं, आईपी मांग रहे हैं, तो आईपी के साथ साथ आप उससे और क्या मांग रहे हैं, गेटवे मांग रहे हैं। तो अगर कोई रॉग डीएचसीपी बन जाए, इसलिए हम ये सारी सर्विसेज पढ़ रहे हैं। अल्दो कि मुझे पता है कि आप दोनों को इन चीजों का पहले से पता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर इसमें ये दो हमारे साले और क्या नाम है अलीना आपकी फ्रेंड का, अल्दो के मजे की बात है कि इन दोनों की वजह से हमने ये चैप्टर्स ऐड किए, और वो दोनों ही लाइबा, बिल्कुल जी, तो लाइबा और उसकी वजह से हमने ये चैप्टर्स को अच्छे तरीके से किया, लेकिन वो दोनों ही नहीं आते क्लास में। सो एनी हाउ उनकी मर्जी है, उनको जोर से तो हम नहीं बुला सकते, लेकिन हम उनको ये कम से कम एडवाइस कर सकते हैं, आपने एक चीज को लिया है तो बेहतर तरीके से करें, और फायदा आपको जल्द नजर आ जाएगा। ये हम आपको कह सकते हैं कि लुकिंग एट दी फ्यूचर, फायदा आपको दिखाई दे देगा, लेकिन आप मेहनत मेहनत के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। यस सर, इवन कि हमारे अभी मेहनत के, कंप्यूटर जब सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो वो जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो वो सिर्फ मैं बोल रही होती हूँ क्लास में, मुझे पता था ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है तो यहाँ पे, और इसी वजह से सर को पता था मैंने कोर्सेज किया, तो सर ने फिर क्लास में बोला बाकी सबको भी कि आप भी जाके कोर्सेज ज्वाइन करें, आप स्किल्स बनाएं अपनी। इस वजह से वो स्टूडेंट्स आपके पास आए भी थे, सुमैया लोग भी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो हमारा मकसद है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम ऐसा लॉट जनरेट कर दें, क्रिएट कर दें, जो कि अगर आज क्लास में आपने अपनी अच्छी, यही कहूंगा, ये भी तो हमारे यहाँ तो हम सिर्फ तालीम को किताबों के तक रखते हैं, दिस तालीम और तरबियत बेसिकली। ऐसी तालीम और तरबियत करें अपने बच्चों की कि वो कहीं भी जाएं, अगला उनसे से इम्प्रेस भी हो, और फिर उनकी तारीफ करे कि भाई देखें इन जैसा बनने की कोशिश करो। जैसे अगर टीचर ने आल्दो के उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो कहें कि जी आप भी इस एकेडमी से या इस इदारे से जाके पढ़ें, और यू विल बी इन बेटर शेप, तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज नाइस के हमें खुशी होती है, और उससे भी ज्यादा खुशी होती है जब हमें हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह पे जॉब पे चले गए हैं, वेल ऑफ हो गए हैं, बस हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में रहेंगे तो हमारा भी कोई वो नहीं है, फायदा हमें नहीं है, खुशी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम देखते हैं कि जी ठीक हो गए हैं और अपना काम कर सकते हैं, वी आर हैप्पी। तो नाइस दिलावेज कि आप अपनी टीचर के साथ बात करती हैं, उनको बताती हैं कि आपको ये चीज पहले से आती है, और उनको एहसास हो गया कि आपने ये चीज पहले से और टाइमली सीख ली है, विच इज नाइस। और उम्मीद करता हूं कि आप जैसे बच्चे लंबी लंबी रेस के घोड़े हैं, विच मीन्स यू विल लर्न ए लॉट बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, हमारी भी मेहनत, हमारा सब कुछ आपके लिए उम्मीद करते हैं कि कायम रहेगा, और हम इसी तरह इस चीज को सीखते रहेंगे और चलते रहेंगे। एनी हाउ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं अगली सर्विस की तरफ, विच इज द ईमेल सर्विस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये सारी सर्विसेज जो बैड गाय है वो इनको इस्तेमाल करेगा फॉर समथिंग टू अटैक। और मैं ये नहीं कहता कि आपने अटैक आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूं आपको आना चाहिए, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करना, कभी भी मत करना।
क्योंकि रूल्स हैं, साइबर के रूल्स मौजूद हैं, तो ये ना हो कि मजे में कहीं फंस जाओ। हाँ, अपने नेटवर्क्स पे करो, और उसी अटैक को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कह देते हैं, पेन टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग या रिकॉग्निसेंस, जो मर्जी नाम दे दो, उस पर्पस के लिए करो। और इवन गो फॉर एंड गेट द बाउंटीज, उसमें अपने उस पैसों से पार्टियां भी करो, हमें कोई कोई उसमें तकलीफ नहीं है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की vulnerabilities, weaknesses in their network detect करो and let them know, and definitely they will respond with some good bounty. तो we appreciate it कि हमारा, हमें इससे खुशी होगी कि जी हमारे इदारे का बच्चा ने फलाने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क, जहां गुरु बैठे हुए थे नेटवर्किंग के और सिक्योरिटी के, फिर भी उनसे कोई वल्नरेबिलिटी फिक्स हुए बगैर रही हुई है, और आपने उसको प्रिडिक्ट कर लिया, आपने उसको ग्रैब कर लिया, बट डोंट यूज इट एनीहाउ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि आपका जो ईमेल है, अगेन यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। वन इज SNTP and the two are POP3 and IMAP. SMT is for sending your email from you to your website, to your email server, and when you get it back, that is using, मिसाल तो आपको किसी ने और ने ईमेल की, लेट करें अलीना ने ईमेल की दिलावेज को और वाइस वर्सा। सो अगर अलीना ने दिलावेज को की तो उसके सर्वर के ऊपर स्टोर हो गई है, let it be the Gmail server. Now from the Gmail you will get this email. So that here either you will be using the POP3 or you will be using the IMAP. Now what is the difference between the two? Very simple. In the POP, the difference is it is like a post office. अगर पोस्ट ऑफिस से आपने अपना खत उठा लिया तो उसके पास क्या रहा पोस्ट ऑफिस के पास? अलीना। अगर आप को किसी ने बताया कि आपका खत जीपीओ में आया हुआ है या पोस्ट मॉल में पड़ा हुआ है और आपने वहां से जाके अपना खत उठा लिया, तो ये उठाने का अमल जो है दैट इज डन थ्रू POP3 इफ। तो उनके पास क्या रहा? जवाब है नथिंग। बस यही यहां पे भी होता है कि आप सर्वर से वो चीज अपने कंप्यूटर पे ले आते हैं, आपके कंप्यूटर पे उस पर कॉपी है, लेकिन न सर्वर के पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हम मोस्टली IMAP इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम वहां पे कॉपी मौजूद रहती है और हम उस कॉपी को मुख्तलिफ पीसीज पे, फिर चाहे अपनी लैपटॉप पे देखना चाहें, चाहे हम अपनी यूनिवर्सिटी में के कंप्यूटर पे देखना चाहें, यानी अपने ऑफिस में जाके देखना चाहें, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो हियर वी आर यूजिंग द IMAP. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन POP and IMAP. And finally is the HTTP. Again a very important सर्विस, नेटवर्क सर्विस। शायद कि ये वो सर्विस है, शायद नहीं यकीनन ये वो सर्विस है जिसने इंटरनेट को बूम दिया, जिसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। दैट इज HTTP, which mean the web. तो आपके एक एंड के ऊपर HTTP क्लाइंट होता है, जैसे ईमेल क्लाइंट था, जैसे DHCP क्लाइंट था। हाँ, एक तरफ आपको पता है ये तमाम की तमाम जितनी भी सर्विसेज मैंने आपके सामने रखी, दे ऑल आर क्लाइंट सर्वर मॉडल्स। क्लाइंट सर्वर मॉडल्स, जैसे एक एंड के ऊपर आपने मिसाल तो ब्राउजर है, चाहे वो गूगल क्रोम है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, चाहे वो कोई भी दूसरा वो है ब्राउजर है, all of them are the web clients. दूसरे एंड के ऊपर it may be an Apache server, it may be a IIS server, it may be a Nginx server. So इन servers के साथ आप बात करते हैं, and the protocol is used between the two, which is using the HTML, which is the hypertext transfer protocol or hypertext language, and by using this the two are communicating with one another. They are doing this in plain text,
you may be using the HTTP. But you know, mostly now we people use, instead of HTTP, HTTPS, which is again no difference except the encryption. ठीक हो गया? तो ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना जरूरी है, and we go through them one by one now. So you know here that at DHCP, it can be static. The job is giving IP address. The purpose is giving IP address, which can be static or which can be dynamic. Again, I explained to you that if it is a dynamic, a range of IP address okay, so if it is dynamic, you will be getting the automatically. जैसे अभी मुझे 10 डॉट समथिंग आईपी एड्रेस मिला हुआ था, दैट इज डायनामिक. जैसे स्पेशली अलीना जब आती है सिस्को लैब में, तो उसके कंप्यूटर को आईपी एड्रेस इलेक्ट्रिकल वाले नहीं दे रहे होते, उसको सिस्को लैब देती है. और अब मैं बार बार बताता हूं कि जी ये एक्सेस रूटर लगा हुआ है, जिसको हमने एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस बताए हुए हैं. उस आईपी की वजह से वो आपको वो रेंज में से एक आईपी एड्रेस दे देता है. देन when a host connects to the network, the DHCP server chooses an address from the configured range of addresses called a pool and assign it to the host. although कि इसके लिए भी 4-way का प्रोसेस होता है. आपको पता है कि DHCP के उस केस में 4-way प्रोसेस होता है, जिसमें आप सबसे पहले DHCP डिस्कवर करते हैं कि कोई है यहाँ पे DHCP. जितने भी DHCPs हैं वहां पे, वो आपको कहते हैं हाँ जी मैं आपको ये चीज दे सकता हूं. आप अगर एक ही है, जैसे हमारे घरों में नॉर्मली क्या ऑलवेज एक ही होता है, तो हम उसको फिर कहते हैं हाँ जी मुझे ये आईपी एड्रेस मंजूर है. वो उसको एक्नॉलेज कर देता है कि ठीक है, अपने पास उसको नोट कर लेता है और वो आईपी एड्रेस फॉर ए सर्टेन टाइम आपका हो जाता है. तो दिस इज द नॉर्मल मेथड. So medium to large networks में DHCP server is a local PC based server, while home में DHCP server is on the local router connecting to the home network to this. यानी कि बड़े नेटवर्क्स में DHCP सर्वर जो होता है वो एक इंडिविजुअल पीसी होता है, जिसका सिर्फ काम आईपी एड्रेसेस देना होता है. जबकि आपके घर में तो हमने एक अलग कंप्यूटर इसके लिए नहीं रखा हुआ, तो हम वही एक्सेस रूटर जो आपको होता है उसी को कहते हैं कि जी आप ही DHCP रहो, आप ही DNS रहो, आप ही गेटवे रहो. मल्टीपल का टास्क उसके जिम्मे डाल देते हैं. तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले अभी बताया कि सबसे पहले काम आप क्या करते हैं, आप DHCP डिस्कवर भेजते हैं कि कोई है DHCP. वो क्या कहता है, जो भी DHCP सर्वर होता है वो आपको DHCP ऑफर भेजता है. यानी ये है आईपी एड्रेस, लेते हो तो ले लो. और रोग DHCP मैंने आपको भी बताया कि वो यही करता है. रोग का मतलब है झूठा, रोग का मतलब झूठा DHCP. तो वो इस सर्वर से पहले ही, जो कि आपको नजर आ रहा है, जहां पे मेरा कर्सर काफी देर से है लेकिन आपकी स्क्रीन पे शायद दिखाई नहीं दे, जब आप ऑफर हो जाए आप DHCP रिक्वेस्ट भेज देते हैं, हाँ जी मुझे ये आईपी मंजूर है. वो उसको एक्नॉलेज कर देता है कि ठीक है जी आप चलते हैं. तो इफ IPv4 एड्रेस रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट और ऑफर्ड बाय द सर्वर इज स्टिल अवेलेबल, द सर्वर, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपका लीज टाइम पूरा हो जाए, और मिसाल के तौर पे अभी अगर आप देखें तो मुझे ये आईपी एड्रेस तकरीबन कोई 8 बजे के करीब मिला होना चाहिए. ये जी बिल्कुल 8:03 पे मुझे
ये आईपी एड्रेस मिला और कहा है कि जी अगले दिन 24 घंटे के लिए आईपी एड्रेस आपका है। हम जो नॉर्मल लैंड उसमें होता है लैब्स में, हम वो इतना लंबा 24 घंटे, हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ड्यूरेशन, नॉर्मली क्लासेस इन दी यूईटी, यूईटी का मुझे नहीं पता, सॉरी मैं नहीं कह सकता, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें बीसीएसई में हम 90 मिनट्स की क्लास रखना पसंद करते हैं और इसी वजह से हम अराउंड 90 मिनट्स ही ये टाइम लीज टाइम रख देते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि 90 मिनट्स के बाद ये स्टूडेंट हो सकता है कैफेटेरिया चला जाए, हो सकता है बाहर ग्राउंड में चला जाए, तो ये आईपी एड्रेस क्यों अपने साथ लेके और यहाँ पे ये आईपी एड्रेस फॉर ए लॉन्गर टाइम बिजी रहे, क्यों ना उसको रिलीज करा लिया जाए ताकि कोई और इस्तेमाल कर सके। Anyhow, is there any question, Alina and Dilavesh? यस सर। सर ये क्वेश्चन ये जी पूछना करें। था कि ये जो क्लाइंट की डिवाइस होती है ये रिक्वेस्ट भेजती कैसे है डीएचसीपी सर्वर को? बिल्कुल ठीक है जी। जब आपके कंप्यूटर पे, जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है और उसमें नेटवर्क एनेबल्ड है, तो लाजमी तौर पे उसको एक नाम चाहिए। नाम का मतलब एक आईपी एड्रेस चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, और उसको हमने यहाँ पे, अगर चलें आपके सवाल के जवाब में ये बात भी क्लियर हो जाएगी। जी, तो यहां पे इसको क्या बताया गया है, इस कंप्यूटर को, इसमें टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, जी बिल्कुल कॉन्फ़िगर्ड है, और कॉन्फ़िगर के साथ यहां पे नजर आ रहा है कि इसमें टिक लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कॉन्फ़िगर्ड है। इसके अलावा अगर हम आईपी वर्जन 6 देखें तो वो भी यहां पे बिल्कुल जी कॉन्फ़िगर्ड है। तो कंप्यूटर कहता है जी मैं कॉन्फ़िगर्ड हूं फॉर द नेटवर्क, नाइस। फिर हम इसको कहते हैं कि जी इसको बताया हुआ हमने कि आईपी एड्रेस तुम्हें चाहिए, कैसे मिल हासिल करो, डायनेमिकली, इसका मतलब तुम्हारे आसपास कोई ना कोई होगा। तो इससे इसको ये पता चलता, अगर मैं इसको ये कर देता तो फिर ये ना मांगता, फिर ये डीएचसीपी डिस्क, इसका मतलब मैं कह रहा हूं डीएचसीपी डिस्कवर भेजने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी आईपी एड्रेस है। फिर यहां पे .1, लेकिन क्योंकि मैंने इसको ये कहा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि द कंप्यूटर हैज बीन इंस्ट्रक्टेड कि whenever you become on, send these messages and try to look at the in response, look at the message card DHCP offer, and if you get a DHCP offer, if this IP is and this lease time and you are agreeing with everything, send a DHCP request, and when you get back a DHCP acknowledgement, consider this IP address is for you for the certain amount of time, which is called lease time. Alina, sorry, Dilavesh, जवाब मिल गया? जी सर ठीक है। ओके नाइस। अगर ये क्वेश्चन का जवाब ठीक है तो फिर अगर ये ठीक है तो इट्स नाइस। तो यहां पे हमने कहा कि अगर वो लीज टाइम कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ये भेजेगा, if an IPv4 address request by a client, if the IPv4 address requested by the client or offered by the server is still available, the server returns the DHCP ACK message। यानी आप दोबारा वो मांगेंगे कि जी, और अगर वो नहीं है वैलिड तो वो आपको DHCP NACK भेज देगा, यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और इसका मतलब है कि आप दोबारा से DHCP डिस्कवर भेजें और एक नया आईपी एड्रेस हासिल करें। Then is the, as I said, DNS, whose job is to resolve the IP addresses, sorry, the URLs
to the IP address. So DNS resolves the names which are URLs to the IP address. And I explained to you that already that it has a hierarchy of DNSs: root, TLDs, second domain levels, and finally the authoritative servers. And authoritative servers have the information of all the IPs related to this domain. Okay, nice. So DNS provide domain names and their associated IP address. The domain system consists of a global hierarchy of distributed servers that contain database of names to IP address mapping. फिर आपको पता होना चाहिए कि malicious DNS traffic can be detected through protocol analysis and the inspection of DNS monitoring information. तो अगर आपका ये चीज गलत आ रही है तो आप पैकेट कैप्चर, जैसे अभी हमें अलीना ने बताया कि वायरशार्क पैकेट कैप्चर करता है, पैकेट स्निफर है, तो हम पैकेट को स्निफ करके डीएनएस के पैकेट को स्निफ करके देख सकते हैं कि किसकी तरफ जा रही है। लेकिन ये तो डीएनएस नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई गलती है। गलती क्या है? मतलब रॉक डीएनएस बना हुआ है इसमें कोई, जिसका मकसद ये होता है कि वो अगेन आपको गलत आईपी दे और वो आईपी वो खुद हो जाए, मिसाल के तौर पे, या उसका ही कंप्यूटर कोई और ये काम करे, तो यूं आपकी सारी ट्रैफिक उसके थ्रू चली जाएगी या उसके पास चली जाएगी, तो और वो आगे रियल की तरफ भेजे, वापस जवाब ले और आपको दे दे, तो यूं वो मैन इन द मिडल बन जाएगा, बन जाएगा। तो malicious DNS traffic can be detected through protocol analysis, क्योंकि DNS is a protocol, तो you are analyzing this protocol. Excuse me, sir. Sure. सर अभी आपने बोला कि ये रॉक डीएनएस बन सकता है कोई, तो सर रॉक डीएचसीपी भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जब डीएचसीपी पढ़ा रहा था तो मैंने यही कहा था कि जो रॉक डीएचसीपी होता है उसका काम ही होता है कि जो ओरिजिनल डीएचसीपी है वो तो बिजी मशीन है, और नॉर्मली हम आपने जैसे आपके घर में लगा हुआ है डीएचसीपी, वो आपको आईपी भी दे रहा है, वो राउटिंग भी कर रहा है, वो डीएचसीपी का काम भी कर रहा है, डीएनएस का भी कर रहा है, गेटवे का भी कर रहा है, यानी कि बिजी मशीन है, और उसका प्रोसेसर कोई इतना हैवी प्रोसेसर भी नहीं है, ना उसकी रैम कोई बड़ी है, यानी उसके पास लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। तो इस केस में रॉक डीएचसीपी जो होता है वो एक इफेक्टिव टूल बन जाता है सिक्योरिटी अटैक्स के लिए, कि जो ही मैं डीएचसीपी डिस्कवर भेजूं वो मुझे भेज दे डीएचसीपी ऑफर। तो मुझे तो जो ऑफर पहले मिलेगी मैं उसको ही उसे ही कहूंगा ये सबसे बेहतर है। मैंने तो ये नहीं देखना कि मुझे दूसरा जो आ रही है वो कोई ज्यादा बेहतर है, नहीं। तो मैं उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देगा, वो मुझे गेटवे गलत देगा। वो गेटवे में हो सकता है अपना एड्रेस दे दे, तो यूं मैं अपनी ट्रैफिक जितनी भी बाहर भेजनी होगी, और मोस्टली हमने बाहर ही भेजनी होती है, सारी ट्रैफिक उसके हवाले कर दूंगा, और वो रियल गेटवे के थ्रू उसको बाहर भेज के वापस जवाब लेगा। हो सकता है कि पैकेट एनालाइजर लगा के वो सारी आने जाने वाली दोनों ट्रैफिक कैप्चर करे और मुझे भी दे दे। इस तरह सोर्स भी डेस्टिनेशन भी सब खुश और वो भी खुश। जी सर, बिल्कुल ठीक है। गुड। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि जब हम अटैक्स की बात करें, जब हम डिफेंस की बात करें, इन नेटवर्क लाजमी तौर पे ये सब कुछ इन नेटवर्क सर्विसेज के जरिए ही होगा। इन्हीं को लोग इस्तेमाल करेंगे और उसी से वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जी मैंने पहले बताया कि देयर इज अ रूट, देन द टॉप लेवल डोमेन, देन द सेकंड लेवल डोमेन, एंड देन वी हैव द authoritative server. So there is hierarchy. और किस तरह हम इन तक पहुंचते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह, मिसाल तो आप रूट के पास गए, उसको आपने कहा जी मुझे .com का चाहिए, तो वो आपको इन सब में से .com का जो आईपी है वो आपको लौटा देगा। इस तरह आप फिर नेक्स्ट स्टेप में .com के पास जाएंगे कि जी मुझे .com में cisco.com चाहिए, वो आपको cisco.com थाउजेंड्स ऑफ वो होंगे उसके बाद एंट्रीज, इससे भी ज्यादा,
उनमें से एक का आपको बता देगा। फिर आप उस पूछेंगे सेकंड लेवल डोमेन से कि मुझे अपना अथॉरिटेटिव सर्वर बताओ, अथॉरिटेटिव सर्वर के पास पहुंच जाएंगे। एंड इन दिस वे यू विल बी गेटिंग, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि एफटीपी डॉट सिस्को अलग है, मेल डॉट सिस्को अलग है, एंड सो ऑन। तो दिस इज द वे इन विच दिस डीएनएस वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस तरह ये डीएनएस लुकअप होता है, कि जब आप डीएनएस का रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या होता है, आपके लोकल के पास जाता है, अगर लोकल के पास है तो इट रिटर्न यू बैक, और अगर नहीं है तो वो रूट के पास जाता है। रूट जो है मैंने अभी बताया कि वो टॉप लेवल डोमेन देता है, सेकंड लेवल डोमेन देता है, अथॉरिटेटिव देता है, और यूं वो जो आपका लोकल डीएनएस है वो अपने कैशे में भी ये चीज रख लेता है और आपको भी हवाले कर देता है। इन दिस वे दिस होल प्रोसेस works. So the same has been explained here. Okay. फिर ये उसके मैसेज का लाजमी तौर पर अगर डीएनएस एक एप्लीकेशन है तो एक प्रोटोकॉल भी है जो कि डीएनएस को इस्तेमाल करता है, जो कि यूडीपी को इस्तेमाल करता है डीएनएस। लेकिन याद रखें कि डीएनएस दोनों इस्तेमाल करता है। आज मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया कि डीएनएस UDP mostly, लेकिन sometime you will find that some of the packets are also using the TCP, क्योंकि DNSs को एक दूसरे के साथ भी बल्क में डेटा को एक्सचेंज करना होता है। तो उस केस में इट इज इंपॉर्टेंट कि वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, क्योंकि बल्क में डेटा है और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, रिलायबिलिटी चाहिए और फ्लो कंट्रोल चाहिए लाजमी तौर पे। तो इन दिस केस डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी टू यूज दी TCP. लेकिन मोस्टली when you are a client is talking to the DNS server, in this case you will be using the DNS with port number 53. Okay, so it is the same. Okay, so then is the dynamic DNS. Dynamic DNS जिसको DDNS भी कहते हैं, allows a user or organization to register an IP address with a domain name. लाजमी तौर पे हमारा डोमेन नेम है UT-Peshawar.edu.pk, लाजमी तौर उसके पीछे कोई IP एड्रेस भी होगा। तो दिस IP address need to be mapped and then this mapping need to be within the authoritative server. जितने भी हमारे इस किस्म के IPs हैं और उनके URLs हैं, जिसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी कहते हैं, FDQN, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ पे रखते हैं, DNS में रखते हैं। आपको अभी भी बताया कि एक डोमेन के अंदर मल्टीपल सब डोमेन्स भी होते हैं। हम दुनिया के जितने भी बड़े वो हैं, हम एज ए एग्जाम्पल, एज ए टेस्ट, एज ए टास्क ये करेंगे कि सिस्को के अंदर कौन से सब डोमेन्स हैं, सीमेंस में कौन से हैं, याहू में कौन से हैं। तो ये एक टास्क हम एक करेंगे कि ये चीज, और ये पार्ट होता है जब हम, आपको पता है कि जब हम अटैक्स की बात करते हैं तो हमारे अटैक में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है उसकी मालूमात हासिल करो। अटैक से पहले मालूमात, जिसको कहते हैं रिकॉग्निशंस। मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं है पता कि क्या ऐसा ही, लेकिन जो मीडिया से हमें पता चला, अगर आपको याद हो कि जब इंडिया ने हम पे अटैक किया था और हमने अगले दिन वापस उसको रिस्पॉन्स किया था, तो कहा जाता है कि हमारी आर्मी को, जो कि बॉर्डर के आसपास उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके जनरल्स बैठे हुए थे, उनका उसके बारे में इनको कंप्लीट मालूमात थी और इन्होंने उसके आसपास पहुंच के उनको एक मैसेज दिया कि हम इससे ये भी कर सकते थे। तो क्यों इनके लिए पॉसिबल था? क्योंकि इन्होंने रिकॉग्निशंस की हुई थी, क्योंकि उन्होंने मालूमात को गैदर किया हुआ था। इनको पता था कि इनकी कौन कौन सी जगह है और कहाँ कहाँ ये बैठते हैं, कहाँ से ये प्लानिंग करते हैं, एंड एवरीथिंग, विच इज गुड। यही काम
एज ए साइबर सिक्योरिटी गाय, एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपने भी करना है। किसी को भी अटैक आंखें बंद करके नहीं करना, मुकम्मल उसकी रिकॉग्निशन, किसके पास कौन सी आईपीस हैं, इसके पास कौन सी नेटवर्क सर्विसेज हैं, इसके पास कौन कौन से सब डोमेन्स हैं, उन सब डोमेन्स में क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, ये सारी चीजें, कौन से आईपीस बंद हैं कौन से ऑन हैं, एवरीथिंग। इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनके सर्वर्स कौन से शहर में पड़े हुए हैं, कौन से मुल्क में पड़े हुए हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी गैदर्ड, and that makes sense and that makes something good, interesting. जब ये काम आप कर लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर यूज करके आप एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब आप एक्सेस का हासिल कर लेते हैं, फिर आप वहां पे बैकडोर्स बनाते हैं ताकि अपने एक्सेस को मेंटेन कर सकें। ये नहीं कि चोर की तरह एक दफा घर में इंटर हुए, अपना काम किया और भाग गए। नहीं, भागना नहीं है, एक्सेस को मेंटेन करना है, क्योंकि वो बार बार आपको जरूरत पड़ सकती है। तो देन यू क्रिएट दी बैक डोर्स एंड थ्रू देम यू रीच अगेन एंड अगेन, जब तक कि पकड़े ना जाए। पकड़े का मतलब ये नहीं, मतलब उस तरह पकड़ा नहीं होता जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है, लेकिन दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और फिर आप ये काम करते रहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। तो अपने नेटवर्क में भी आप ये सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? कि अगर आप उस नेटवर्क में आपने ये करने के काबिल हो गए, तो डेफिनेटली फिर कोई और भी कर सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ी होती है, मैंने जैसे बताया डीडीएनएस के पास। तो दी डायनामिक डीएनएस प्रोवाइडर सर्विस सप्लाइज द आईपी एड्रेस टू द रिजॉल्वर second level domain. This DNS server, either at the organization ISP, provide the DNS IP address to the resolvers. तो ये जो टास्क है हु इज, ये उसी के जुमरे में आता है जो मैं आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। हु इज अबाउट फाइंडिंग कि इसके पास इसका डीएनएस कौन है, इसका कौन कौन से आईपी रेंजेस इसके पास हैं, ये सब कुछ इसी में। तो हु इज ए टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओनर्स ऑफ द इंटरनेट डोमेन थ्रू द डीएनएस सिस्टम। The Whois application uses a query in the form of fully qualified domain name. Even Whois जो है वो यहां पर भी मौजूद है कि अगर हम चले जाएं, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे चले जाएं और यहां लिखें whois.com, who is, look up, और यहां पे लिखें www.cisco.com। Please fill out the, okay, देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई। डोमेन नेम इसका cisco.com है। इसका हु इज सर्वर जो है वो है who is डॉट मार्क मॉनिटर ब्ला ब्ला। कब ये इन्होंने अपने आप को अपडेट किया, जून 2000 दिस। कब ये पहली दफा आए, 1987 में। इनका एक्सपायरी कब कब इनका इस डोमेन के ऊपर एक्सपायर होंगे, 2022। कौन है इनका रजिस्ट्रार, मार्क मॉनिटरिंग कॉर्पोरेशन। इनको आईपी एड्रेस अयाना ने से मिला। इनका जो एड्रेस कंप्लेंट का है वो कौन है। तो आप देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है। देखिए फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर वासमन, सॉरी,
और सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती होती है, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो ये 3 है, इनके डोमेन सर्वर्स, ns1.cisco.com, ns2.cisco.com, ns3.cisco.com। तो हम आगे जाके यही इंफॉर्मेशन इनकी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहां ही लिख दें netstat nslookup www.cisco.com, तो जनाब इसके ये हमें आईपी एड्रेसेस मिले, इनमें से 2 जो हैं आईपी वर्जन 6 के हैं और एक आईपी वर्जन 4 का है। तो इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करके एक आईपी का हमें आइडिया मिल गया, इस आईपी से हम इनको फिर स्कैन करेंगे, जिसको हम कहते हैं पिंग स्कैन, स्वीप, पिंग स्वीप। हम पूरे स्वीप कर जाएंगे, एक एक बैठ के कौन करे, एक ही दफा 1000 आईपी को कहेंगे ढूंढो, तो उस वक्त फिर आपको मजा आएगा कि अच्छा इसके पास इस 1000 में से 20 आईपीस काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। फिर हम उस 20 की जगह पोर्ट्स को करेंगे, कौन किसके ऊपर खुली हुई है। इन दिस वे you will be learning and you will be enjoying, inshallah. So using Wireshark to examine the UDP DNS capture, ये क्लास तो कल जरूर करना है जी, which is the Wireshark भी इस्तेमाल होगा, UDP के आपको पता है कि UDP इस्तेमाल होता है मोस्टली, तो इट विल बी नाइस कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लिया जाए। तो इससे आगे इंशाल्लाह कल विच इज 28, तो अगर ये लैब की तो अलग बात, नहीं तो लैब को हम सैटरडे उस पर फ्राइडे भी रख सकते हैं, क्योंकि आखिरी डे होता है, रिलैक्स टाइम होता है। तो अगर हम चाहें तो कल ये चैप्टर भी ख़त्म करके तो एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं उनसे छुटकारा हासिल करके एंड स्विच टू दी रियल साइबर सिक्योरिटी विच चैप्टर नंबर 11, उससे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम उसको पर जाना पसंद करेंगे। तो अगर आप दोनों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अदरवाइज वी विल मीट इंशाल्लाह टुमारो अगेन विद द समथिंग न्यू। ठीक है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल इंशाल्लाह एसन भी अवेलेबल होगा और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी होंगे, उनको एक मैसेज भी भेजेंगे कि जी छुट्टियां बस एक हद तक। यस सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।